Hello everyone, this is Ghazal. I'm a motivational coach and I make videos on personal development. If you feel something is missing in your life and you feel a kind of emptiness and you don't even know the reason for that emptiness, then do watch this video till end because today I'm going to share my own experience from emptiness to happiness and I have a lot to share on this. So do watch it till end and video थोड़ी सी लंबी हो सकती है, चाहे इसकी speed बढ़ा दो, but do watch it till end. Okay, so let me take you back to my early 20s, and this was a time in my life when I was not a very happy person. I was not a positive person, and I was happy and I was not happy. I had everything and I had nothing. I used to feel that something was missing in my life and I didn't know what. Or I was looking for answers. तो पहले मेरे को लगा that maybe my job is the reason and I just resigned it. I left my job. I left Chandigarh. I moved to Delhi and I did a training there to be a motivational coach. और ये बात है 2017 की. And हमारे जो ट्रेनिंग में सेशंस होते थे they were on topics like self awareness, emotional intelligence, time management. मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते थे कि इतनी अवेयरनेस आनी शुरू हो गई अपने बारे में और लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई. So I became very sure that yes, something is definitely missing and I have to do something about it. Because I never wanted to live my life like an unhappy person. I always wanted to be happy. So I talked about it to one of my friends and she was also a trainee there and she suggested me to read a book called Magic. And guys, this was the first time in my life when I actually got to know what is gratitude and कि इसको practice भी करना होता है. And I got so excited क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ पता लगी थी and I started practicing it. I became a positive person. लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती की. I practiced it only for a few days and I just left it. जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि थोड़े दिन दा चा. So it was just like for a few days and it just didn't last longer. So life उसके बाद फिर से वैसी की वैसी. I got so busy with my work. Honestly मैंने अपनी लाइफ में gratitude को पार्ट बनाया लाइफ का लॉकडाउन की बिगनिंग में. There was a time when I actually realized its importance and I started practicing it every single day, and today I can't even express into words that how life has changed. I've become so positive, I've become so happy. I'm in a very happy headspace today. I won't say life is perfect. Life perfect किसी की भी नहीं है और कभी होगी भी नहीं. But my attitude towards life has completely changed. I'm so contented, so fulfilled with my life. And so in this video I'm going to share everything about gratitude, like what it is, how to practice, why to practice and when to practice. Gratitude is a feeling of thankfulness and appreciation for what you already have in life. मतलब आपकी लाइफ में जो भी है ना अभी इस टाइम पे जितना भी आपको दिया गया है उसके लिए एक थैंकफुलनेस की फीलिंग होना, दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड. एंड आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे उनकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. मतलब उनकी लाइफ ग्रैटिट्यूड से ही चलती है. सो आई वुड से इट्स अ की टू अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ. इट्स अ हैबिट एंड अ जर्नी. और जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, वर्च्यूज हैं, ग्रैटिट्यूड को सबसे ऊपर रखा जाता है. मतलब इट इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी और इसको पेरेंट वर्च्यू भी बोला जाता है. There are millions of reasons to practice gratitude because इसके बहुत benefits हैं, but in this video I would be sharing 2 reasons. So first is you attract what you focus on. तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, suppose a business is not doing well, your relationship is not working out, there is a shortage of money, and if you keep talking about these things again and again, these problems grow in life. ये 10 गुना ज़्यादा हो जाती है, they become very huge. लेकिन अगर आप अपना फोकस इनसे हटा के ग्रैटिट्यूड पे लेके आओगे, जिसको बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मेंटल एडजस्टमेंट करना, मतलब फोकस अपना हटाना प्रॉब्लम से और ग्रैटिट्यूड पे ले आना, पॉजिटिविटी लाना, हैप्पीनेस रेडिएट करना, तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी और आप अपनी प्रॉब्लम से भी बड़े हो जाओगे. लाइक यू विल बिकम बिगर देन योर प्रॉब्लम एंड यू वुड बी एबल टू फेस इट. सो मतलब फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ, लाइक हैप्पीनेस, पीस, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स. सो जब आप इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, दिस इज व्हाट यू अट्रैक्ट. लेकिन जब आप सोचोगे कि ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, ये काम नहीं कर रहा, तो वही चीज़ें और बढ़ती जाएंगी. और ये एक बुक है द पावर, उसमें भी बोला गया है दैट थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट यू लव इन लाइफ. डोंट थिंक एंड डोंट इवन टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू डोंट लव. उसको अपनी एनर्जी दो ही मत. सेकेंड इज जितना ही सोशल मीडिया का यूसेज बढ़ रहा है उतना ही लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, देन कंपैरिजन, डिससैटिस्फैक्शन, ये सब भी बढ़ रहा है. एंड एवरी पर्सन फील्स दैट ही और शी डजंट हैव इनफ और दूसरे के पास ज़्यादा है.
एंड सबसे पहले तो ध्यान जाते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे कि अच्छा फ़ोन नहीं है तो मे बी वो फ़ोन आएगा, आई बी अ हैप्पी पर्सन देन. अच्छा वो गाड़ी नहीं है सो मे बी व्हेन आई गेट दैट कार आई बी अ हैप्पी पर्सन देन. और ये साइकिल चलता रहता है. वी कीप चेजिंग वन थिंग आफ्टर द अदर. और फिर क्या होता है, थोड़े दिन खुशी होती है उस चीज़ की अगर हम कोई ले भी लेते हैं, और उसके बाद फिर वी बिकम वेरी नॉर्मल. और इसको साइकोलॉजी में कहते हैं हेडोनिस्टिक अडेप्टेशन या हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल. मतलब कि ह्यूमंस की लाइफ में ऐसा फेज आता है जैसे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, थोड़े दिन का इन्फ्लुएंस रहता है, एंड देन अगेन दे कम बैक टू देयर नॉर्मल लेवल ऑफ हैप्पीनेस. और अगर कोई पर्सन ऑलरेडी नॉर्मल लेवल ही उसका है स्ट्रेस, तो फिर वो पर्सन हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा. वो थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड होगा, कोई कुछ नया होगा लाइफ में तो ही और शी वुड बी एक्साइटेड, बट अगेन ही वुड कम बैक टू हिज नॉर्मल लेवल ऑफ हैप्पीनेस. लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हो, आपका नॉर्मल लेवल ऑफ हैप्पीनेस ही बढ़ जाता है. सो मतलब चाहे कुछ भी नया हो रहा है लाइफ में, पॉजिटिव नेगेटिव, यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय दैट, एंड यू आर एबल टू मेंटेन योर हैप्पीनेस लेवल, एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप इंप्रूव्स, एंड ऑल्सो इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट डिजीजेस. सो ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद भी सर्च कर सकते हो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. एंड लाइफ में इतने साल स्ट्रेस तो ले लिए है, अब ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करके देखो एंड मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल. So there are two ways to express gratitude. So one is internally, where you can just say words of thankfulness and express your gratitude, and you can also write it down in your notebook. And I would highly recommend कि आप लिखो, आप रोज लिखो एटलीस्ट 3 चीजें you are grateful for in your life. तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहते हैं one-on-one सेशंस में, I always encourage them to make a gratitude journal, और उन्होंने बनाया भी है और अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस भी देखे हैं. So my gratitude journal is this one. And this is basically, this notebook itself is very special to me because this is the first gift that I received in my life from my students, and it's very special. So ये मेरा आज journal भी है आजकल, और इसमें मैं अपना रोज gratitude भी लिखती हूँ. Research says that it's very important to write. चाहे gratitude है, goals हैं, ideas हैं, हमेशा इनको लिखो, तो तभी आपके subconscious mind में ज़्यादा deeply जाते हैं. आप एक gratitude jar भी बना सकते हो. मतलब एक jar लो, शीट्स ले लो, कुछ छोटे छोटे पेपर्स ले लो, कलर भी ले सकते हो, एंड उस पर लिखो 3 चीजें यू आर ग्रेटफुल फॉर, एंड फोल्ड इट एंड पुट इट इन द जार, एंड रोज करो ये. और आफ्टर अ मंथ या आफ्टर अ वीक आप उसको देख भी सकते हो, एंड यू विल फील सो गुड अबाउट योर सेल्फ. आपको इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील होगा कि अच्छा इतनी चीजें हैं दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, और मैं इतने सालों से आई वाज जस्ट इग्नोरिंग दीज थिंग्स. तो बहुत ज्यादा वो आपको रियलाइजेशन होगी. देखो, जब आप ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में शुरू करोगे ना प्रैक्टिस करना, आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है. आप स्टार्टिंग में सोच सकते हो कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूं, मतलब क्या ही है लाइफ में. लेकिन आप डीपली सोचना, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. इट कुड बी इवन द फूड यू ईट, इट कुड बी द क्लोथ्स यू वियर, इट कुड बी एनीथिंग. थोड़ा ज्यादा डीप जाना है, इट कुड बी द सेल्स इन योर बॉडी ऑर्गन्स. बहुत सारी चीजें आपको खुद मिल जाएंगी. सेकेंड वे टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इज एक्सटर्नली. मतलब टू शो gratitude to people around you, to people who are there in your life, who is your support system, जिन्होंने आपको लाइफ में कहीं ना कहीं या कभी ना कभी सपोर्ट किए. उनको कभी सरप्राइज कॉल कर दो और ग्रैटिट्यूड शो करो. रीलिव दोज मोमेंट्स. उनको एक थैंक यू नोट भेज दो, उनको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो. मतलब ऐसे कुछ भी आप सोचो, और इससे क्या होगा कि यू बोथ ऑफ यू वुड एक्सचेंज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, एंड दैट पॉजिटिविटी वुड कम बैक टू यू in abundance. I would say gratitude को प्रैक्टिस करने का वैसे तो कोई टाइम होना ही नहीं चाहिए. मतलब कभी भी आप gratitude को एक्सप्रेस कर सकते हो. आप अभी भी वीडियो देखते हुए you can just have a feeling of thankfulness. And लेकिन फिर भी like in my life I practice gratitude majorly during 2 times. One is when I wake up, I always say that today is going to be an amazing day. Today is going to be a beautiful day. And second is I always thank God for a new day. So that's how I show my gratitude. Next, before you sleep, that's the best time to show gratitude. So these are the 2 times that you can practice gratitude. और अगर दिन में कभी भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है. जितना ज़्यादा gratitude practice करोगे, उतना ही ज़्यादा you will feel positive. And if this is the first time that you are going to practice gratitude in your life, I would highly suggest कि आप अपने फोन में एक रिमाइंडर लगाओ, ताकि रोज आपको याद रहे इनिशियली कि हाँ मेरे को gratitude एक्सप्रेस करना है, और धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी. Lastly, I would say if you ever feel stressed or if you feel that life is unfair to you,
उस टाइम अपना ग्रैटिट्यूड देखना कितना है, और आई एम श्योर उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड आपका कम होगा। उसको इंक्रीज करना, ग्रैटिट्यूड को इंक्रीज करना, थिंग्स वुड स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। सो नो मैटर वेयर यू आर इन योर लाइफ राइट नाउ, नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, I would say plant a seed of gratitude in your heart and live happily. So that was all about gratitude. I really hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, and if you really like the video, please do hit the like and subscribe button and stay connected.